Today's topic is primer designing. It's a very important topic because now most of the bioinformatics based analysis, especially nucleotide based analysis, starts with the PCR. And whenever we are going for the PCR analysis, we want the very specific primers to be designed out. So today, a very important topic for us to design a proper primers for our target sequence, and for that we learn what are the different programs available with us, what are the important literature that we need to study first, so that we'll be able to design a proper primer. Along with that, we'll also see some of the different variations of the primers, PCR techniques which are available, because as per PCR technique, we have to design primers. Okay, so that part again we will see into this point. Then we'll also cover a very important point. Whatever the template means, whatever the nucleotides, genome or mRNA or cDNA will take, how to take that particular part into the consideration for primer designing. Everything we need to understand in this topic. So we'll start with this primer designing concept. So we'll start with the very basic part, that what is exactly a PCR is. Okay, PCR, whose full form is polymerase chain reaction. It's an in vitro DNA amplification process, right? Everybody knows it's in vitro DNA amplification process. This has been carried out by first time by the Carey Mullis. He's one of the scientists who has developed a PCR machine. This machine is actually based on the uh, thermal principle. Okay, it's a thermal principle based system. So it's a thermal principle based system, and based on the temperature shift, you can see the variation is occurring in a DNA amplification process. Okay, so these are things which we already know to us, but we need to understand in detail about this. What is this all about? Now, whenever we are starting with the PCR, we'll be requiring some chemicals, we'll be requiring some materials for us to start with. First thing is the machine. Okay, machine will be requiring, machine is, if you have seen, might have seen the machine, it is having a small wells. Okay, and those wells are, at the bottom of that there is a thermal cycler. Okay, means it has been connected at the bottom with the thermal cycler. Thermal cycler will regulate, actually will regulate the temperature uh, inside the chamber, inside the chamber. This we know. Okay, you must have seen that thing. So those wells which are the which have been controlled by the thermal cycler regulates the temperature inside the chamber. This we all know. So this machine we require. Second thing is will be requiring the chemicals. Okay, and then last one will be the software. Okay, so chemicals, if you see the chemicals, what are the chemicals required? First is the template. Okay, first is the template, second is the DNTPs, then we'll be requiring distilled water, then we'll be requiring uh, Taq polymerase. Is everything we know, still I'm covering it. Taq polymerase. What else left? Yes, primer left. Primers. Anything else? इसके अलावा कुछ लगता है? Anything else you want in PCR? No, I think template is, we have done DNTP, which will amplify distilled water, Taq polymerase, and primers, and along with that buffer. Okay, we will be requiring buffer and salts, right? Buffer and salts have been left. These are the things which will be requiring in a PCR reaction. Everything is important for the proper PCR to be done. So we'll start one by one. Okay, our aim is to reach to this part, primer designing. But before reaching to that part, we need to start from the one point. First is the template. Template.
Now, can anybody tell me in PCR what kind of templates we can use? For example, I have a cell. From the cell, what type of templates I can use in a PCR reaction? DNA, yes. But in DNA, which type of DNA? Which type of DNA means? There are different types of DNA, as I already told you. What type of DNA we can use? Generally the genome, right? We generally take the genome as a template. Okay. Now what is the template? Can anybody tell me what is the template? If I consider a genome in a PCR as a template, what is the actual role of genome in a PCR as a template? Can anybody tell me? It's actually in short, it's a target site, right? है ना? Target site है ना? Target site for PCR. Now, can anybody tell me what is whether PCR reaction is a marker or not? PCR reaction जो होती है वो मार्कर है या नहीं? PCR reaction marker है या नहीं? Can anybody tell me? PCR reaction is marker or not? Yes, it's a marker biology. Keep in mind, okay? It's a marker biology. हमेशा याद रखिए ये कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है इसलिए इसको मार्कर पीसीआर भी कहा जाता है या मार्कर बायोलॉजी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. So we have understood. So now we have reached to the template part first. What is the template? As I already told you, you can start with genome. अब genome कितने टाइप के हैं? How many types of genome? Yes, यानी one is nuclear and second is extra nuclear, right? Extra nuclear. So whenever you are starting with the PCR reaction, you need to decide. Okay, you need to decide what you need to decide, that what type of template you are interested in, right? What type of template you are interested in. अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास मुझे एक जीन एम्पलीफाई करना है जिसका नाम है परमीएज. क्या नाम है? परमीएज. आपने सुना है ये नाम कभी? सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना होगा, है ना? आपने कैटालेज लाइज सुना होगा, परमीएज नहीं सुना होगा. ये परमीएज प्रोटीन मुझे एम्पलीफाई करना है तो इसके लिए मैं कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल करूं? कोई मुझे बता सकता है कैसे प्रोसेस करेंगे? सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? क्या ढूंढना पड़ेगा? कैन एनीबडी टेल मी? एक मेरे पास परमीएज जीन है, ये मुझे पता चला. उसका मेरे पास में सीक्वेंस भी है, मान के चलते हैं. तो इस परमीएज जीन के सीक्वेंस के बेसिस पे मैं कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल करने वाला हूँ पीसीआर में, ये मैं कैसे कंफर्म करूँ? तो मुझे बताएगा. सीक्वेंस है आपके पास में, किसी को समझा कि नहीं क्वेश्चन मेरा? आपके पास दो टेम्पलेट है ना, एक है न्यूक्लियर और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर. इन दोनों में से कई एक जगह होगा वो आपका परमीएज जीन. तो कौन सा लेना चाहिए? न्यूक्लियर लेना चाहिए कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर लेना चाहिए? ठीक है, चलो नहीं समझ रहा मैं बता देता हूँ. सबसे पहले यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी शुरू हो जाएगी. ठीक है, प्राइमर डिजाइनिंग के लिए आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ से शुरू हो जाएगी. व्हाट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट यू नीड टू पोजीशन द जीन, दैट इज जीन लोकेशन. क्या पे सेट करना है आपको? चेक करना है कि आपका जीन लोकेशन क्या है.
जीन लोकेशन पता कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास में आपका जीन है और उसका सीक्वेंस भी है तो अच्छी बात है। सीक्वेंस है तो क्या करेंगे, कौन सा एनालिसिस करेंगे? कौन सा एनालिसिस करेंगे, जल्दी बताओ। ब्लास्ट, हाँ ब्लास्टन करेंगे। ब्लास्टन से हमको ये पता चलेगा कि वो कौन से जीनोमिक लोकेशन पे है। ये हम ढूंढ ढूंढ चुके हैं ना पिछले बार भी। जीनोमिक लोकेशन पे पता चल जाएगा। हो सकता है वो 16वें नंबर के क्रोमोसोम पे हो सकता है वो न्यूक्लियर हो, या फिर वो प्लाज्मिड होगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी जो लोकलाइजेशन है वो न्यूक्लियर के साथ हो सकती है, न्यूक्लियर के साथ हो सकती है, या माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हो सकती है, या क्लोरोप्लास्ट के साथ हो सकती है, या फिर प्लाज्मिड के साथ हो सकती है। ये पहले सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। न्यूक्लियर है, माइटोकॉन्ड्रियल है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लाज्मिड है। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा टेम्पलेट हमको टारगेट करना है। तो अब मुझे समझ लो, पता चला कि मेरा ये जो जीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टारगेट माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मुझे माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करना है तो मेरे सेल से मुझे न्यूक्लियर जीनोम को हटा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसको हटा देना पड़ेगा, और सिर्फ मुझे किसको निकालना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को निकालना पड़ेगा। सो मैंने उसको निकाल लिया। सो दैट विल बिकम माय टारगेट, या फिर उसको बोलते हैं टेम्पलेट। सबको समझ गया कैसे डिसाइड करते हैं टेम्पलेट को? कोई डाउट है? हाँ या ना में बोल दीजिए, फटाफट आगे चले। ओके, सबको क्लियर हो गया। टेम्पलेट कैसे डिसाइड करते हैं? अभी आप जब इंटरव्यू में जाएंगे अभी बड़ी बड़ी जगह पे, तो आपको पूछते हैं व्हाट इज टेम्पलेट इन अ पीसीआर, तो आप अच्छे से समझाना उनको कि सर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स। अगर हम सेल ले रहे हैं तो इतने हो सकते हैं, इसके अलावा कोई टेम्पलेट हो सकता है क्या? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा, क्लोरोप्लास्ट के अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और भी कोई टेम्पलेट हो सकता है क्या? आपने पढ़ा है? अगर आप मेरा सबसे पहला लेक्चर आपने समझा होगा तो। प्लाज्मिड भी पकड़ लो ना उसके अंदर। उसके अलावा ये तो सब सेल के अंदर होते हैं, और कौन सा टेम्पलेट रह सकता है? भूल गए? भूल गए? मेटाजिनोमिक्स। अगर आप मेटाजिनोमिक्स कर रहे हो तो उसका कोई सेल ओरिजिन रहेगा क्या? नहीं ना। आप सॉइल का डीएनए निकालोगे, एयर का निकालोगे, वाटर का निकाल सकते हो। तो ये भी आपका टेम्पलेट हो सकता है, यानी इसका सेल्यूलर ओरिजिन नहीं है ना, नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन है, पर ये भी आपका डीएनए रह सकता है। यानी इससे निकाला हुआ जो डीएनए होगा ये भी आपके लिए टेम्पलेट की तरह काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें याद रखो, भूलना नहीं, इसको जिंदगी भर भूलना नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बाद में पूछूंगा, 10-15 दिन बाद में उसको मैं पूछूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज्ड इन पीसीआर। तो आपको सबको लिखना है, ठीक है। आपको सबको कमेंट्स में डालना है, और मैं जब बोलूंगा इंटर तभी आपको इंटर करना है, ठीक है। एक साथ इंटर करके नहीं रखना है, जब मैं बोलूंगा इस टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। तो जितने अच्छे से आंसर दे पाएंगे उतना अच्छा आपको नॉलेज हुआ, ये हम समझेंगे। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दैट इज अ टेम्पलेट। तो हमारे पास में इतने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो वेरिएबल होती है, वो है आपका प्राइमर, ठीक है। आपका प्राइमर वेरी करेगा। प्राइमर कोई बता सकता है व्हाट इज एग्जैक्टली अ डेफिनेशन ऑफ अ प्राइमर? कोई बता सकता है एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है उसकी? अच्छा, क्रूड बता दीजिए कि एग्जैक्ट क्या करता है प्राइमर। मैं बताता हूँ। प्राइमर, जोर से बोलिए।
बोल सकते हैं डीएनए सिंथेसिस या डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। और कोई, और कोई? शॉर्ट न्यूक्लियोक एसिड सीक्वेंस, और ठीक है मैं बताता हूँ। प्राइमर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री oligonucleotide sequence targeted for the template DNA, which needs to be amplified by PCR reaction, and which needs to be specific in length, which whose length may vary between 8 nucleotide to 24 to 25 nucleotides in general. Okay, and those has the ability to amplify the PCR reaction if the targeted DNA is available, है ना। इतनी बड़ी उसकी डेफिनेशन है। तो ये सारी चीजें, इसमें क्या क्या चीजें सबसे पहले समझ लो। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है किसका, टेम्पलेट का। आपका जो टेम्पलेट है जैसे सॉइल का डीएनए या न्यूक्लियर जीनोम या क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया, ये जीन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई जीन भी हो सकता है। तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। दूसरी बात है ये ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड है। ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड ने बहुत बड़ी लेंथ उसकी नहीं होने वाली, मिनिमम लेंथ उसकी 8 न्यूक्लियोटाइड से 25 से 26 न्यूक्लियोटाइड तक जाता है। ये हो गया उसका बेसिक फीचर। दूसरी एबिलिटी क्या होती है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अटैच्ड होता है और 3 प्राइम एंड वो सर्व करता है डीएनए पॉलीमरेज को, और डीएनए पॉलीमरेज और 3 प्राइम एंड को यूज करके डीएनटीपीज को अटैच करके पीसीआर रिएक्शन कैरी आउट करता है। ये सारी उसकी खासियत है। पर इसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं और वो ही उसकी खासियत है, उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपने अभी समझ लिया। इसके अलावा पीसीआर में और कोई वेरिएबल है क्या, यानी देखिए टेम्पलेट होता है और प्राइमर, ये दो चीजें बड़ी वेरिएबल चीज है। इसके अलावा डीएनटीपीज जो होती है ना, ये भी वेरिएबल होती है। ये डिपेंड करेगा कि आपका टेम्पलेट का जो एम्प्लीकॉन आप सिलेक्ट कर रहे हो कितना रख रहे हो, तो उसके बेसिस पे भी इसकी क्वांटिटी डिसाइड होती है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन जो दो वेरिएबल चीजें होती है खासकर पीसीआर में होती है टेम्पलेट एंड प्राइमर, ये हमको समझ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। पीसीआर जब कर रहे हैं हम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टारगेट सीक्वेंस, ठीक है। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, टारगेट सीक्वेंस। कोई मुझे बता सकता है टारगेट सीक्वेंस यानी एग्जैक्टली क्या? टारगेट रीजन। पीसीआर में, पीसीआर जब हम कर रहे हैं तो हम पीसीआर प्राइमर थ्रू टारगेट करते हैं, ठीक है। यानी कौन सा रीजन जीनोम का हमको एम्पलीफाई करना है उसको कहते हैं टारगेट सीक्वेंस, ठीक है। सो जीनोम if remains complementary to the primer sequence, it will, that primer will bind to that genomic part region, and then through the PCR reaction that part will be amplified, ठीक है। सो टारगेट सीक्वेंस क्या होगा, जीनोम के ऊपर where primer binds, राइट। तो ये टारगेट सीक्वेंस हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड आएगा एम्प्लीकॉन। क्या आएगा, एम्प्लीकॉन। एम्प्लीकॉन क्या है, amplicon is the region between the primers, okay, region between the primers amplified by the PCR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लीकॉन कौन है, इट्स रीजन बिटवीन द प्राइमर्स एम्प्लीफाइड बाय द पीसीआर, ठीक है। सॉरी, पीसीआर प्राइमर्स, हाँ ओके, पीसीआर रीजन बिटवीन द प्राइमर्स एम्प्लीफाइड बाय द पीसीआर अवेलेबल ऑन द टेम्पलेट, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। देन एक बार आपका एम्प्लीकॉन आपके हाथ में आ गया, यानी आपका पीसीआर पॉजिटिव है, ठीक है। पीसीआर पॉजिटिव यानी आपके प्राइमर ने प्रॉपरली उसको एम्पलीफाई कर लिया है, ठीक है।
सो आपका जो सिग्नल आएगा वो पॉजिटिव आएगा आपको, ठीक है, जो सिग्नल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सो इट्स अ गुड पीसीआर। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पीसीआर पॉजिटिव आने से जरूरी नहीं है कि हमारा टारगेट रीजन अटैच्ड हो गया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, टारगेट रीजन अटैच नहीं होता, फॉल्स पॉजिटिव आता है हमारे को, क्या आता है, फॉल्स पॉजिटिव। इसलिए खुश मत होना कि अगर पीसीआर पॉजिटिव आ गया तो सही है, फॉल्स पॉजिटिव पीसीआर भी आते हैं। अब फॉल्स पॉजिटिव पीसीआर कैसे आते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। आपका जो प्राइमर है उसकी उसका जो सीक्वेंस है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री रीजन को जाके बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन को जाके बाइंड करेगा। इसकी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे वो पर्टिकुलर रीजन पे जाके ही बाइंड करेगा। और कभी कभी क्या होता है ना, इसकी स्पेसिफिसिटी अगर लो होगी तो वो रैंडम कहीं पे भी जाके बाइंड कर देगा, रैंडम बाइंडिंग हो जाएगी। रैंडम अगर बाइंडिंग हो गई तो आपका जो एम्प्लीकॉन है वो रॉन्ग हो जाएगा, समझे। ये कब पता चलेगा, जब आप उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। क्या करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले क्या आंसर मिलेगा आपको, मुझे जो एक्सपेक्ट था कि मुझे 1500 बेस पेयर का बैंड मिलना चाहिए था, ठीक है, ये आइडियल है यानी बेस्ट है। बट क्या हो गया, मुझे मिल रहा है 3000 बेस पेयर का बैंड, ठीक है। यही से समझ जाना कि कहीं ना कहीं गलत एम्पलीफाई हुआ है, क्योंकि आपने जो टारगेट किया था वो जो एम्पलीकॉन था, ये जो एम्पलीकॉन था इसे 1500 बेस पेयर का होना चाहिए था, पर अभी आपको मिल रहा है 3000 का। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका प्राइमर जो है वो गलत जगह बाइंड हो गया है, रिजल्टेंट आपको प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा आपको आंसर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको लगेगा कि ओके मुझे 1500 का एक्सपेक्टेड था तो आपको 1800 के आसपास मिल रहा है, और आप उसको कंफ्यूज मोड में डाल दोगे कि नहीं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ। देन व्हाट विल हैपन, यू विल गो फॉर द सीक्वेंसिंग। आप उस एम्पलीकॉन को सीक्वेंसिंग करोगे, और सीक्वेंसिंग के बाद जब आप ब्लास्ट एनालिसिस करोगे तब आपको पता चला कि आपके पास में रॉन्ग सीक्वेंस है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हो रही है ये एक चीज के कारण हो रही है, दैट इज योर प्राइमर। आपका प्राइमर प्रॉपर होना चाहिए तभी वो रिएक्शन प्रॉपर हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी यहाँ तक हम पढ़ ली है। किसी का कुछ डाउट है टेम्पलेट और प्राइमर्स में? चलो, नो डाउट। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हमको कुछ चीजें सीखनी है, ठीक है। फिर से हम जीन से शुरुआत करते हैं। जीन कितने टाइप के हैं, अगर मैं सेल के लेवल पे बोलूँ तो जल्दी जल्दी बताइए, कितने टाइप के सेल्स हैं, कितने टाइप की जीन्स है, सॉरी। 3 टाइप? नहीं, वो तो अलग हो गया, जीन पूछ रहा हूँ मैं। किया है। और उसके अलावा अगर मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को बोलूँ तो, है ना, प्रोकैरियोटिक जीन एंड यूकैरियोटिक जीन, है ना। सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास में जो जीन्स है, जीन का सेट है, वो 3 टाइप के प्रोडक्ट दे पाता है। पहली बात तो mRNA, rRNA और tRNA। उसके अलावा वो दो, उसके अंदर वेरिएशन भी है, एक है प्रो और दूसरा है यूकैरियोटिक। ये हो गई जीन्स की सेट की बात। जनरली पीसीआर जो करते हैं वो जीन को टारगेट करके ही करते हैं, ठीक है, जीन को टारगेट करके ही करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे पीसीआर होते हैं जिसमें हम जीन को टारगेट नहीं करते, ठीक है, जैसे वी एन टी आर पीसीआर।
वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट पीसीआर। यहाँ पे हम जीन को टारगेट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट यानी जंक डीएनए को टारगेट कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का पीसीआर कर रहे हो। हमेशा जरूरी नहीं कि जीन ही टारगेट होगा, रीजन भी टारगेट होते हैं। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट पीसीआर। चलो ठीक है, पर अभी हम जीन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए जीन की तरफ जाएंगे। जीन, ठीक है। इफ आई कंसिडर अ यूकैरियोटिक जीन, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें एक इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है। ठीक है, हाँ या ना, बराबर है। एक इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन, इस तरह से प्रोसेस चल रही है। अब जब ये यूकैरियोटिक जीन ट्रांसक्राइब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसक्राइब, तो क्या हट जाएगा इसके अंदर से, एक्सॉन हट जाएंगे, क्या हटेगा, इंट्रॉन, हाँ इंट्रॉन्स हट जाएंगे ना, बचेगा कौन, एक्सॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है हमको। ठीक है, अब यहाँ जो जीन है, अगर मैं पूरा जीन पीसीआर में डाल रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास में इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है। ठीक है, और अगर मैं टेम्पलेट में जीन नहीं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं उसकी जगह, एमआरएनए है ना, उसका आरएनए है ना, एमआरएनए या आरएनए ले रहा हूं उसका, यानी अल्टीमेटली क्या ले रहा हूं, सीडीएनए। तो सीडीएनए में क्या चीजें नहीं है एज कंपेयर टू जीन, नहीं एक्सॉन तो है ना, क्या नहीं है देखो, इंट्रॉन्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पीसीआर समझाने के पहले आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे अभी कुछ दिनों बाद में, तो आप मैनेजमेंट में बैठने चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी में नहीं बैठने चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट में बैठने की कोशिश करोगे तो ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मुझे एक पीसीआर करना है। ठीक है, मुझे एक पीसीआर करना है, और मेरे पास में अब दो टाइप के टेम्पलेट है, एक है जीन और दूसरा कौन है, सीडीएनए। अल्टीमेटली कौन है ये, एमआरएनए, समझ रहे हैं। तो यहां हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जीन के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं और आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर मेरा कोई प्राइमर सीक्वेंस, अगर मेरा कोई प्राइमर सीक्वेंस इंट्रॉन स्पेसिफिक है, क्या है, कौन सा स्पेसिफिक है, इंट्रॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कहां जाके बाइंड करेगा वो, इंट्रॉन पे, राइट। अगर ऐसा है आपका, तो इंट्रॉन स्पेसिफिक प्राइमर है आपके पास। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आपको पुट किया, मेरे पास आपका प्राइमर है, ठीक है, मैंने पीसीआर रिएक्शन लगाई और उसके अंदर जो टेम्पलेट है वो जीन दिया, आप ही का जीन जिसके लिए स्पेसिफिक है, जीन दिया, टेम्पलेट कौन है, जीन। तो पीसीआर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा टफ है पर आसान भी है अगर ध्यान से देखो तो। आपने क्या बोला अभी, इंट्रॉन स्पेसिफिक प्राइमर बनाया आपने, यानी वो इंट्रॉन को डिटेक्ट करता है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो आपने वो प्राइमर पीसीआर रिएक्शन में डाल दिया और उसमें जो टेम्पलेट दिया वो कौन है, जी। तो मुझे पॉजिटिव आएगा, आंसर आया पॉजिटिव। मैं पूछूंगा क्यों,
राइट, बराबर। अब उल्टा लेते हैं, मेरे पास आपका इंट्रॉन स्पेसिफिक प्राइमर है, ठीक है, और मैंने पीसीआर लगाया और उसमें टेम्पलेट दिया सीडीएनए, पीसीआर पॉजिटिव। वेरी गुड, समझा क्या आपको ये पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिजाइनिंग के लिए कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं रहता है, समझ में नहीं आता उनको, ठीक है, बहुत दिन लगते हैं चीजें समझने के लिए, इसलिए मैं आपको उस बारीकी से लेके जा रहा हूँ, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज करने के वक्त इतना आसान नहीं है, ठीक है। आपको लगता है अरे वाह पीसीआर करना तो क्या है, फटाफट हो जाएगा। पीसीआर करना कोई गेम नहीं है, पीसीआर के पीछे का स्ट्रेटेजी डिजाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स लर्न करना इतना जरूरी है कि आप कभी भी जाके कोई भी यहाँ पे पीसीआर कर सकते हो, क्योंकि पीसीआर सीखना कोई बड़ी बात नहीं, पर पीसीआर के पीछे की स्ट्रेटेजी आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब आपने ऐसा बोला यहाँ पे कि आपके पास में दो टाइप के पीसीआर, दो टाइप के पीसीआर कंडीशन हो सकती है, राइट। एक हो सकती है जीनोम स्पेसिफिक, बोल रहा हूँ बराबर है। एक क्या है, जीनोम स्पेसिफिक, और एक दूसरी क्या हो सकती है, सीडीएनए स्पेसिफिक, करेक्ट है, आया ना? हाँ, आपके पास दो टाइप का पीसीआर कर सकते हैं आप, एक जीनोम स्पेसिफिक और एक है सीडीएनए स्पेसिफिक। पर ये स्पेसिफिसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमर्स, ठीक है। तो आपने एक ऐसा प्राइमर बनाया जो इंट्रॉन को बाइंड करता है, समझ रहे, समझ रहे। तो जब वो इंट्रॉन को बाइंड करता है तो वो कौन सा स्पेसिफिक हो गया, जीनोम या सीडीएनए? वेरी गुड, जीनोम स्पेसिफिक। और अगर मैं एक्सॉन स्पेसिफिक बनाता हूं, एक्सॉन स्पेसिफिक बनाता हूं, तो किससे स्पेसिफिक हो गया, हाँ, और जीनोम स्पेसिफिक नहीं रहेगा, हाँ, दोनों के लिए रहेगा, जीनोम एंड सीडीएनए स्पेसिफिक, दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। समझ रहा है क्या, आपको समझ गया? तो आप जब प्राइमर बनाएंगे आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंट्रॉन स्पेसिफिक बना रहे हो या एक्सॉन स्पेसिफिक बना रहे हो। खासकर ये कब स्पेसिफिक, ये चीज किसके लिए अप्लीकेबल रहेगी, कौन से टाइप के सेल के लिए, कौन से टाइप के? वेरी गुड, अभी आप होशियार हो गए। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के लिए नहीं है ना ये कंडीशन, प्रोकैरियोटिक के लिए कोई ऐसा कंडीशन पुट करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर कभी भी इंट्रॉन्स नहीं होते। अभी आपको समझ गया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसके बेसिस पे, ठीक है। आपने एक प्राइमर लिया, आपने एक प्राइमर बनाया, उसके अंदर टेम्पलेट अननोन है, आपके पास क्या है, अननोन, टेम्पलेट अननोन है, और यानी आपको ये नहीं पता कि वो जीनोमिक है या सीडीएनए है, इसलिए मैंने उसको बोला टेम्पलेट अननोन। तो ये जो रिएक्शंस है, ये मैंने पहले टेम्पलेट के साथ की, टेम्पलेट नंबर 1, ठीक है, और फिर वही रिएक्शन टेम्पलेट नंबर 2 के साथ की, समझा, सारी रिएक्शन सेम है, पहली बार एक टेम्पलेट लिया, दूसरी बार एक टेम्पलेट लिया। तो आपको मुझे ये बताना है कि टेम्पलेट नंबर 1 कौन है और टेम्पलेट नंबर 2 कौन है, समझा क्या आपको? मैं एक प्राइमर ले रहा हूं विद अननोन टेम्पलेट्स, बाकी पीसीआर रिएक्शन सब है, ठीक है। अब जब पीसीआर पॉजिटिव आ जाएगा, पीसीआर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मैंने उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, क्या किया मैंने उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में
पहले वाले का एम्प्लीकॉन, पहले वाले का एम्प्लीकॉन 6000 बेसिस का आया, ठीक है, और दूसरे वाले का एम्प्लीकॉन 2000 बेसिस का आया। तो मुझे ये बताइए पहला वाला जो टेम्पलेट है वो कौन है और दूसरा वाला टेम्पलेट कौन है, बता पाएंगे? थोड़ा टफ है क्वेश्चन, है ना, बट मजेदार है। यही तो सारी चीजें आनी चाहिए। बिना हाथ लगाए पीसीआर को, अगर आप पीसीआर के एक्सपर्ट होंगे तो वो कभी भी कोई भी कितनी भी मुश्किल मशीन दे देना हाथ में, डर नहीं लगता, ठीक है। तो आपको ये सब पता रहना चाहिए। मेरे पास एक प्राइमर है, ये प्राइमर ने इस टेम्पलेट को एम्पलीफाई किया, ठीक है। तो ये टेम्पलेट दो है मेरे पास में, टेम्पलेट नंबर 1 है और एक टेम्पलेट नंबर 2 है। दोनों पॉजिटिव है उस रिएक्शन के लिए इस प्राइमर के साथ। जब मुझे उसका पीसीआर पॉजिटिव मिला, मैंने उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में मुझे पहला वाला जो टेम्पलेट था उसने मुझे कितने बेस पेयर दिए, 6000, और फिर सेकंड वाले ने मुझे दिया 2000 बेस पेयर। तो मुझे ये बताया कि पहला वाला कौन सा टेम्पलेट है। हम्म, नहीं, वो चीज अलग हो गई, वो चीज अलग हो गई, ये चीज अलग हो गई, ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। यहाँ थोड़ा समझो ना, यहाँ समझो, इसमें से ये दोनों में से कोई तो भी एक आंसर है, जीनोम है या सीडीएन है, तो कौन सा है बताइए। बराबर है, आंसर बिल्कुल सही है। अब मुझे एक्सप्लेनेशन दो उसका, आपने ऐसे क्यों बोला। आज क्यों, क्यों ज्यादा होगा? वेरी गुड। आपका आपका दोनों पीसीआर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि आपने जो प्राइमर बनाया वो कौन सा है, एक्सॉन स्पेसिफिक। समझा ना, एक्सॉन स्पेसिफिक। अगर मुझे यहाँ नहीं आता ये तो समझ जाना कि इंट्रॉन स्पेसिफिक है ना। और यहाँ दोनों पॉजिटिव है, यानी एक्सॉन स्पेसिफिक आपने प्राइमर बनाया और आपको एक टाइम 6000 बेस पर आया, दूसरे टाइम 2000 बेस पर आया। तो यस, जो 6000 बेस पर वाला है, ठीक है, वो ऐसा बाइंड हुआ होगा एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन में एक प्राइमर बाइंड हुआ, फॉरवर्ड प्राइमर, है ना, समझता है ना, समझ रहे हैं सबको। फिर बीच में आया होगा इंट्रॉन, फिर एक्सॉन आया होगा, और फिर वहां बाइंड हुआ होगा रिवर्स प्राइम। समझा क्या आपको? तो इसलिए क्या हुआ कि एक्सॉन का लेंथ तो एम्पलीफाई हुआ ही हुआ, साथ में इंट्रॉन का भी हुआ। तो इंट्रॉन की लेंथ जो है वो कितनी है, बताओ, इंट्रॉन की लेंथ कितनी? नहीं, 4000 बेस पेयर्स, क्योंकि 2000 तो यहाँ एम्पलीफाई हो रहा है ना नीचे में भी। समझा क्या आपको? हाँ, तो ये जो रिएक्शन हो गई ये पहले वाले के साथ हुई, दूसरे वाले के साथ क्या हुआ होगा, ई फॉरवर्ड प्राइमर, बराबर, यहाँ पे कोई भी आई नहीं है, फिर से ई रिवर्स प्राइमर। समझा क्या आपको? रिजल्टेंट कितना एम्पलीकॉन मिला, 2000 स्क्वायर। पॉइंट समझ रहे हैं सबको? ये है ये है आपका पीसीआर के टाइप्स,
यानी आप बता सकते हो कि कौन सा एम्पलीफाई हुआ है, जीनोमिक हुआ है या सीडीएनए हुआ है, राइट? बेस्ड ऑन दैट यू कैन वेरी इजीली असेस। हाँ हाँ, नहीं, वायरल जीन में इंट्रॉन्स नहीं होते ना, उसमें इंट्रॉन नहीं होते, वो डायरेक्ट बैक्टीरिया जैसे ही रहता है, सीधा सीधा रहता है, वो कोड करता है, उनके अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होती। ठीक है, सेम बैक्टीरिया जैसा कंसेप्ट चलेगा। ये आपको पॉइंट समझ रहे हैं? सबको मजा आ रहा है ना समझने में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं समझने के लिए, कितना भी आप पीसीआर सीख लो वो मटेरियल नहीं करता, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ये तो बहुत आसान हो गया, इतना आसान तो होगा नहीं ना। अब और एक चीज पढ़ते हैं, और एक कंडीशन पढ़ते हैं, और एक कंडीशन पढ़ते हैं हम। वो कंडीशन ऐसी है कि आप मान के चलिए कि आपके पास में एक पेशेंट आया, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट, आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपके पास में एक पेशेंट आया और आप आर एंड डी लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि आप एक पैंडेमिक लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, और पैंडेमिक लैब में एक पेशेंट आपको विजिट करने आ गया या किसी ने आपको रेफर किया जो एबनॉर्मल है, थोड़ा एबनॉर्मल है ना, मेंटली नहीं, भी उसके बायोकेमिकली या फीचर वाइज, इसीलिए वो पेशेंट ऐसा कहा गया, और वो सस्पेक्टेड है, क्या है? सस्पेक्टेड। क्योंकि कंफर्म रहता है तो आदमी फिजियोलॉजिकली दिखा देता है या मेंटली दिखा देता है या केमिकली दिखा देता है, और ये कौन है, किस टाइप का पेशेंट है? सस्पेक्टेड। अब कोई पेशेंट सस्पेक्टेड क्यों होता है? ठीक है, सस्पेक्टेड क्यों होता है? क्या पहले रीजन हो सकता है कोई पेशेंट किसी डिसीज के लिए सस्पेक्टेड होना है ना, क्या कोई मुझे बता सकता है? सस्पेक्टेड होता बोलते ना, ये सस्पेक्टेड है, तो कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड क्यों है, एविडेंट क्यों नहीं? तो इसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि जो कॉजेटिव एजेंट है, ये थोड़ा समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिसर्चर बनाएगा एक्चुअली। हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सिर्फ सीखने के लिए नहीं ले रहे, हम आफ्टर एमएससी या आफ्टर बिकमिंग ए लेक्चरर हम उसमें रिसर्च पुट करना चाहते हैं, ठीक है। हम पीएचडी अगर कर रहे हैं तो उसके बाद में हम रिसर्चर बनना चाहते हैं, अगर हम रिसर्चर ही नहीं बन पाएंगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमारे पास में पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, जो उस इंसान को सस्पेक्ट बना रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं पूछूंगा कि पेशेंट सस्पेक्टेड है तो किस चीज के लिए सस्पेक्टेड है, तो वो बोलेगा कोई तो, हाँ, सिम्टम्स तो है, हाँ, यस, सिम्टम्स तो है, ऑब्वियसली सिम्टम्स है, पर माइल्ड होते हैं, राइट, इसलिए वो सस्पेक्टेड है। समझ रहा है? अगर मीजल्स आपके बॉडी पे पूरे आ गए तो आप तो बोलोगे ना, अरे मीजल्स हो गया इसको, पर वो खुजा रहा है, उसके छोटे 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 दाने आ रहे हैं, एकदम थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो फिर आप सस्पेक्टेड बोलोगे। सिम्टम्स है ही डेफिनेटली, इसलिए वो पेशेंट है। तो ये जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है, ठीक है, या कभी कभी वो असिम्टोमेटिक भी होता है, पर सस्पेक्टेड होता है। हाँ, यस, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक्चुअली, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। असिम्टोमेटिक बट सस्पेक्टेड, आपके घर में पॉजिटिव आ जाता है, समझ लो आपका हस्बैंड आ गया, आपका भाई आ गया, आपका बहन आ गया, तो आप सस्पेक्टेड हो जाते हो, आप तो खुश हो, एकदम बढ़िया हो, हेल्दी हो, पर आप तो असिम्टोमेटिक सस्पेक्टेड हो। फिर कुछ कुछ लोग चेक करते हैं, कुछ कुछ लोग चेक नहीं करते, कुछ लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, है ना, पर वो डेंजरस है एक्चुअली। तो यही यही एग्जाम्पल है एक्चुअली। तो ये एग्जाम्पल में हम क्या बोल रहे हैं कि भैया वो जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्रेजेंट है या फिर absent है, ये हमको ढूंढना है ना। उस पेशेंट में वो पॉजिटिव एजेंट है या नहीं है, अगर वो सिर्फ सस्पेक्टेड है तो हम ढूंढेंगे कि वो पॉजिटिव एजेंट है या नहीं है। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। बोन टीबी, सुना है क्या इसके बारे में? बोन टीबी, चेस्ट वाला तो सबको पता है, बोन टीबी भी होता है, हड्डी वाला।
ठीक है। अब बोन टीबी यानी आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपके हड्डी में चला गया है, आपके बोन्स में चला गया है, पर ये जब तक आप लेट फेज तक नहीं पहुंचते ना तब तक वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, तब तक ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। और अगर ये लेट फेज तक पहुंच गया तो ये डेडली हो जाता है, मर जाता है इंसान, बचता ही नहीं। इसलिए ऐसा डायग्नोसिस करने की कोशिश करते लोग कि वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, अर्ली स्टेज डिटेक्शन, ठीक है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। जब वो अर्ली स्टेज की डिटेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो बंदा हमेशा कौन रहेगा, सस्पेक्टेड, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि जो बाकी के सिम्टम्स है उसके बेसिस पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बोन टीबी है। तो लोग ऐसे वक्त में क्या करते हैं, ऐसे वक्त में जो फिजिशियन होता है, ये आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, फिजिशियन जो होता है ना वो रेफर कर देता है इसको किधर, डायग्नोसिस लैब में, उसको डायग्नोसिस लैब में रेफर कर देता है, गो टू डायग्नोसिस लैब एंड डू द टेस्टिंग। वो बोलेगा टेस्टिंग करके लाओ, ठीक है, टेस्टिंग करके लाओ। किस तरह की एडवाइस करेगा, एडवाइस करेगा लूप पीसीआर कराओ, ठीक है, या फिर नेस्टेड पीसीआर कराओ फॉर टीबी प्रेजेंस इन बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में चेक करके आओ कि आपके पास टीबी का प्रेजेंस है या नहीं है क्योंकि आप सस्पेक्टेड हो। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है पीसीआर वाले का, ठीक है। पीसीआर कैसे करें, तो वो जो पेशेंट है आपके पास में, ये पेशेंट तो आपके पास आ गया, तो सबसे पहली बात है कि पेशेंट आपके पास है, ठीक है, आप उसका एक छोटा सा सैंपल लोगे, ठीक है। छोटा सा सैंपल कहां से लोगे, बोन मैरो से, समझ रहे हैं, आप उसका बोन मैरो कलेक्ट करोगे। अब बोन मैरो आप ब्लड तो बहुत सारा ले सकते हैं, है ना, कोई भी एक ऑन करिए माइक, कोई भी एक ऑन करे, मुझे कुछ पूछना है, ठीक है। तो किया ऑन किसी ने, माइक ऑन किया किसी ने, मुझे दिखता नहीं, आप वहां पे बताइए। ओके ओके, आप किसी भी डायग्नोस्टिक लैब में जाएंगे और आपको पूछा, किसी ने डायग्नोस्टिक लैब में बोला कि ब्लड दे दीजिए, तो आप फटाक से उसको सीरीज पर ब्लड दे देते हो, दे देते ना। पर मैं बोलूं कि आपको हड्डी का टुकड़ा देना है तो आप दे सकते हो क्या, नहीं ना। और नहीं दे सकते हो, अगर मैं बोलूं बोन मैरो भी देना है तो भी बहुत बड़ी प्रोसीजर है, ड्रिल करना पड़ेगा ना आपके बोन को, तो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो होता क्या है ना कि सोर्स सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ कॉजेटिव एजेंट डिटेक्शन, है ना, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एजेंट डिटेक्शन जो है वो बहुत कम है आपके पास में, यानी आपके पास में सैंपल जो है बहुत ही लो है। आपके पास अगर ब्लड है तो बहुत रिच सैंपल है आपके पास, पर अगर आपके पास में बोन मैरो है तो आपके पास में बहुत छोटा सा सैंपल है। और एक चीज, आपने जो बोन मैरो लिया वो हो सकता है 0.5 ग्राम्स हो, ये 0.5 ग्राम्स आपके पूरे होल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। yes. आपका बॉडी का सिर्फ मैंने 0.5 ग्राम लिया बोन मैरो, और उसमें मैं ये बताने वाला हूं कि आपको टीबी है या नहीं है। ऊपर से आप कौन हो, सस्पेक्टेड, यानी अब अल्टीमेटली फाइंडिंग क्या है, अल्टीमेटली फाइंडिंग क्या है, अल्टीमेट फाइंडिंग ये है यानी ये मेरा पहले डिसीजन रहेगा। क्या डिसीजन रहेगा कि सबसे पहली बात तो पेशेंट इज सस्पेक्टेड, है ना, पेशेंट इज सस्पेक्टेड, और सस्पेक्टेड फॉर बोन मैरो इन्फेक्शन, ठीक है। और मैं बोलूंगा एंड ही इज इन पॉसिबल अर्ली इन्फेक्शन स्टेज, है ना, क्योंकि वो सस्पेक्टेड है इसलिए कौन से स्टेज में,
अर्ली इन्फेक्शन स्टेज में है मीन्स 0.5 grams of bone marrow will contain very low TB बैक्टीरिया, बराबर। यानी कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। समझा क्या आपको? अगर मैं बोल रहा हूं कि आपका पेशेंट सस्पेक्टेड है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसके पास में बहुत ही कम इन्फेक्शन है बोन मैरो में अभी, एंड हिज पॉसिबिलिटीज इन अर्ली इन्फेक्शन स्टेज, और आपने उसको अभी उसको डिटेक्ट करने को बोला है, तो ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं देखना चाहूंगा। तो अब मेरे पास में सिर्फ 0.5 ग्राम्स ऑफ बोन मैरो है, और उसके अंदर में मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत ही कम टीबी होगा, ठीक है। तो बहुत ही कम, लो लो लोड, इसको क्या बोलते हैं? लो लोड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लो लोड, यानी आपका लोड जो है, जो पॉजिटिव एजेंट का लोड जो है वो बहुत ही कम है, यानी आपके पास में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का जो डीएनए होना चाहिए वो होगा पिकोग्राम में। क्या होगा? कितने में होगा वो? पिकोग्राम, यानी वो 0.5 ग्राम में आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, अगर मैं डीएनए निकालने की कोशिश करूं, स्टार्टर डीएनए, ठीक है, यानी क्या करूंगा, ये बोन मैरो को मैं डीएनए आइसोलेशन में लेके जाऊंगा। डीएनए आइसोलेशन से हम कौन सा आइसोलेशन करेंगे? बैक्टीरियल डीएनए आइसोलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा, और उसके बाद में मेरे पास में आ जाएगा डीएनए। समझे? अब ये डीएनए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मेरे पास में क्या आएगा? पिकोग्राम में आएगा। अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टफ पीसीआर। क्या बोलते हैं? टफ पीसीआर, क्योंकि आपके पास में जो स्टार्टर डीएनए है ना वो बहुत कम लोड है, बहुत कम शुरुआत से हो रहा है, तो इसलिए पीसीआर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी टफ पीसीआर क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। पीसीआर में होता क्या है मैं आपको एक समझाता हूँ। मान के चलिए आपके पास में 5 डीएनए के स्ट्रैंड है स्टार्टिंग में, ठीक है, 5 डीएनए स्ट्रैंड है, यानी आपका पहला स्टार्टर टेम्पलेट है। आपके पास में 50 डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, 50 डीएनए स्ट्रैंड है, ये भी आपका स्टार्टर टेम्पलेट है, और आपके पास में 5000 डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, 5000 डीएनए स्ट्रैंड है। इसमें मुझे बताइए सबसे अच्छा टेम्पलेट कौन है? 5 डीएनए स्ट्रैंड, 50 डीएनए स्ट्रैंड, या 5000 डीएनए स्ट्रैंड? ये टेम्पलेट है स्टार्टिंग जब मैंने डीएनए निकाला किसी सेल से, तो कौन अच्छा है मेरे लिए? बताओ जल्दी। यस, 5000, क्योंकि ऑलरेडी 5000 डीएनए स्ट्रैंड है, यानी बहुत अच्छा है। यानी अब मैं जब इसकी पीसीआर रिएक्शन लगाऊंगा, एक साइकिल होगी, कोई भी पीसीआर रिएक्शन में जनरली 25 साइकिल्स चलाते हैं, ठीक है, कितनी साइकिल्स होती है? 25 साइकिल। तो अगर मैं 5000 से शुरू कर रहा हूं, मान के चलता हूं 5000 से शुरू करता हूं, तो जैसी एक साइकिल होगी तो मुझे कितने डीएनए मिल जाएंगे? कितने मिलेंगे? समझा? समझा या नहीं समझा? एक साइकिल होगा तो 5000 के कितने हो जाएंगे? 10,000। फिर दूसरी साइकिल चलेगी तो उसकी साइकिल का कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है, इंटू इंटू होते जाएगा, वो डबल मान के चल रहा हूं, तो इस तरह से वो डबल डबल होते जाएगा। पर अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं, एक साइकिल करता हूं, तो मुझे मिलेगा 10 डीएनए। ऐसे करते हुए अगर मैं 30 साइकिल भी करूंगा तो कितने मिलेंगे? इससे होता क्या है ना, ये डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है। तो जो डीएनए एम्पलीफिकेशन है, डीएनए एम्पलीफिकेशन
ये डिटेक्टेबल लेवल तक पहुंचना चाहिए। क्या तक पहुंचना चाहिए? डिटेक्टेबल लेवल, यानी एक पर्टिकुलर नैनोग्राम तक वो पहुंचना चाहिए। जैसे मान के चलता हूं 1 नैनोग्राम डीएनए तो भी वो बन जाना चाहिए, यानी पिकोग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? 1 नैनोग्राम में। तभी वो डिटेक्ट हो पाएगा कि हाँ वहां पे पीसीआर पॉजिटिव हुआ है। समझा क्या आपको कि नहीं समझा? जितना स्टार्टिंग टेम्पलेट कम रहेगा उतना डिटेक्ट होने में मुश्किल हो जाएगी। समझा क्या आपको पॉइंट? तो तो यहाँ पे हम नॉर्मल पीसीआर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमारा लोड जो है, डीएनए लोड जो है वो क्या है? लो है। नॉर्मल पीसीआर नहीं कर सकते, इसलिए हम कौन सा पीसीआर करेंगे? कौन सा पीसीआर करेंगे? नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। आपके पास में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसका जीनोम आपने आइसोलेट कर लिया पर उसका लोड बहुत लो है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप उस जीनोम का एक जीन टारगेट करेंगे जो आप डिटेक्ट करना चाहते हो। वो जीन का एक रीजन आप एम्प्लीकॉन के लिए डिसाइड कर लोगे थ्रू प्राइमर, ठीक है? और ये जो रीजन होगा इसको बोलते हैं इनर रीजन। क्या बोलते हैं? इनर रीजन। ये इनर रीजन का जो टोटल एम्प्लीकॉन साइज होगा वो सिर्फ 250 बेस पेयर का रहेगा। थोड़ा समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास एक जीनोम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो लो है बहुत, इसलिए आपने उसका एक जीन कंसीडर किया और उस जीन के अंदर का एक रीजन एम्प्लीफिकेशन के लिए टारगेट किया थ्रू यूजिंग ए प्राइमर। और वो प्राइमर जो है उसको इनर रीजन के लिए टारगेट कर रहा है। तो इनर रीजन कितना है? सिर्फ 250 बेस पेयर का। जितना एम्प्लीकॉन लेंथ एम्प्लीकॉन लेंथ या साइज छोटा होता है उतना पीसीआर प्रोमिनेंट होता है। समझा क्या आपको? यानी अगर आपका दो प्राइमर फॉरवर्ड और रिवर्स 10,000 न्यूक्लियोटाइड एम्पलीफाई कर रहे हैं तो उसका जो पीसीआर प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत लो मिलेगा आपको। और अगर आपका फॉरवर्ड और रिवर्स सिर्फ 250 बेस पेयर को डिटेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉपी नंबर उसकी बनाएंगे, क्योंकि उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए वो क्या करेगा? 250 का बेस पेयर का एम्पलीफिकेशन करेगा। ये 250 का एम्पलीफिकेशन हो जाने के बाद में ये 250 बेस पेयर जो है ये पीसीआर रिएक्शन में है अलॉन्ग विथ जीनोमिक डीएनए पड़ा हुआ है। फिर मैं क्या करूंगा? पीसीआर कंडीशन चेंज करूंगा और मैं एक आउटर प्राइमर को ऑन करूंगा। किसको करूंगा ऑन? आउटर प्राइमर। आउटर प्राइमर क्या करेगा? आउटर प्राइमर इसको, इसके जो प्राइमर्स बाइंड हुए थे ना उसको अटैच्ड होता है और फिर से एम्प्लीफिकेशन करता है। तो ये रिगरसली एक्चुअली 2 टाइम्स पीसीआर होता है, ठीक है? 2 टाइम्स पीसीआर होता है। इससे उसमें अगर डीएनए कम भी होगा ना तो वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है। इट विल रीच टू द सम नैनोग्राम डीएनए लेवल, ठीक है? तो इसको बोलते हैं नेस्टेड पीसीआर। तो ये भी एक टाइप का पीसीआर है जो हमको करना पड़ता है। ये स्ट्रेटेजीज मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, आप ये स्ट्रेटेजीज समझ लीजिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, नो, क्योंकि ये थोड़ा टफ है ये वाला। पर जब आपको मैं सिखाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या है नेस्टेड पीसीआर, ठीक है? कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं आई थिंक। So now we'll go for the main part, that is what is actually a primer is, ठीक है? प्राइमर क्या होते हैं ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये पेपर है जो सब लोगों ने पढ़ना है बाद में, जैसे आपको ऑफ टाइम मिलेगा। छोटा सा पेपर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर बहुत सुंदर पेपर है, इसको आप जरूर पढ़िएगा।
इसका टाइटल है, आप लिख के रख लीजिए अपने पास, जनरल कंसेप्ट फॉर पीसीआर प्राइमर डिजाइन। ठीक है, सबको पता है एग्जैक्टली पीसीआर क्या है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा और हमने पढ़ भी लिया है। हम देखेंगे कि प्राइमर क्या होते हैं और उसके क्या फीचर्स होते हैं, ये हमको देखना है डिजाइन में जाने से पहले। इसलिए सबसे पहले है उसके पैरामीटर्स। किसी भी प्राइमर को डिजाइन करने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है प्राइमर के बारे में, प्राइमर खुद ही एक ऐसी चीज है जो खुद को बैलेंस करता है बिटवीन द टू गोल्स। एक होती है स्पेसिफिसिटी और दूसरी होती है एफिशिएंसी। ठीक है, फॉर द एम्प्लीफिकेशन प्राइमर ये दो फीचर्स जरूर दिखाना चाहिए, स्पेसिफिसिटी और एफिशिएंसी। एग्जैक्टली स्पेसिफिसिटी वर्ड क्या है? इट्स अ फ्रीक्वेंसी विथ विच मिस प्राइमिंग इवेंट्स ऑकर्स। वो जितना कम फ्रीक्वेंसी में मिस प्राइमिंग करेगा उतना वो स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी मीन्स उसने रॉन्ग पीसीआर रिएक्शंस नहीं देने चाहिए। ठीक है, देन what is efficiency? Efficiency is defined as how close a primer pair is able to amplify a product to the theoretically optimum of the two-fold increase of the product for each PCR cycle। यानी आप रियली उसको पीसीआर साइकिल में जब उसको रन कराओगे, जो भी प्राइमर आप थियोरेटिकली डिजाइन करोगे, कितना एफिशिएंटली जाके वो आपके टारगेट को बाइंड करता है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। यानी आप जो भी पीसीआर प्राइमर बनाओगे वो पहले तो आप थियोरेटिकली बनाओगे, कंप्यूटर पे बनाओगे, तो कंप्यूटर पे बनाने के बाद में उसको सिंथेसाइज करने के लिए भेजोगे। सिंथेसाइज करके जब आएगा और जब आप उसके साथ पीसीआर करोगे टेम्पलेट के साथ में, तो वो कितना परफेक्टली जाके बाइंड करता है, उसको कहेंगे एफिशिएंसी। ये दो चीजें जो है ये प्राइमर के ऊपर, अच्छे प्राइमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा प्राइमर बनाने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, तो हम सीखते हैं वन बाय वन। पहला जो कैरेक्टर है प्राइमर का वो है प्राइमर लेंथ। कोई मुझे बताएगा, अगर मेरा प्राइमर का लेंथ छोटा है, मान के चलो 8 बेस पेयर का है, और मेरा प्राइमर का लेंथ 24 बेस पेयर का है, कौन ज्यादा स्पेसिफिक है? 8 बेस पेयर ज्यादा स्पेसिफिक है या 25 बेस पेयर वाला स्पेसिफिक है? 8 बेस पेयर वाला स्पेसिफिक रहेगा या 25 वाला? आपको क्या लगता है? हमने पढ़ा है रिस्ट्रिक्शन इंटू न्यूट्रल। हाँ 25 बहुत सही आंसर है ये। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ बढ़ते जाएगा, हाँ जितना ज्यादा लेंथ बढ़ते जाएगा उतना वो स्पेसिफिक होते जाएगा उस रीजन के लिए। तो जितना छोटा छोटा लेंथ होते जाएगा उतना वो नॉन स्पेसिफिक होते जाएगा, यानी उसको उतने चांसेस मिलते जाएंगे वो जगह वो सीक्वेंस मिलने के। इसलिए आपको बहुत ज्यादा वेरिएबल नंबर ऑफ एम्प्लीकॉन्स मिलेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट समझ लिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें देखो, प्राइमर लेंथ, प्राइमर लेंथ डिसाइड क्या करती है? स्पेसिफिसिटी। ये थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, प्राइमर लेंथ रिलेटेड टू स्पेसिफिसिटी, दो चीजें हैं ना प्राइमर के अंदर। सो स्पेसिफिसिटी इज जनरली कंट्रोल्ड बाय लेंथ ऑफ द प्राइमर। ठीक है, एंड द एनीलिंग टेम्परेचर ऑफ द पीसीआर रिएक्शन। जिस तरह से लेंथ का प्राइमर का लेंथ चेंज होगा उस हिसाब से एनीलिंग टेम्परेचर भी लेंथ वाइज चेंज होता रहता है। ये हम देखेंगे, फिर समझेगा आपको बाद में। Oligonucleotide between 18 and 24 base pair tend to be very sequence specific। किसी ने आपको पूछा कि प्राइमर की लेंथ जनरली सबसे अच्छी कौन सी होती है, तो आप ये जरूर बताना 18 से 24 बेस पेयर। And if the annealing temperature of the PCR reaction is set within a few
डिग्री ऑफ प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर, डिसोसिएशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने 18 से 24 डिग्री का बेस पे रखा है प्राइमर का लेंथ का, तो 54 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये अच्छा टेम्परेचर है अनील करने के लिए। ठीक है, मिनिमम लेंथ टू इंश्योर मेल्टिंग, सॉरी मेल्टिंग टेम्परेचर 54 डिग्री टेम्परेचर रखना है। अगर आप 18 से नीचे जा रहे हो, ठीक है, यानी शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हो, तो ये तभी यूजफुल है जब आप पीसीआर प्रोटोकॉल्स को सेट कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप उसको रैंडमली यूज कर रहे हो। ठीक है, खासकर मैपिंग में। ठीक है, आपने आरएपीडी पीसी आरएपीडी सुना है क्या? आरएपीडी, आरएपीडी सुना है किसी ने? फुल फॉर्म बता सकते हैं? ओके, शायद नहीं सुना होगा। रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो अगर आप आरएपीडी एनालिसिस कर रहे हो तो ये शॉर्ट प्राइमर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी लेंथ 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड तक होती है। ठीक है, तो जब आप रैंडम पीसीआर कर रहे हो या आर्बिटरी पीसीआर कर रहे हो तो आप हमेशा बेस पेयर 15 बेस पेयर के नीचे रखते हो। जब आप स्पेसिफिक पीसीआर कर रहे हो तो लेंथ कितनी रहनी चाहिए? 18 से 24 न्यूक्लियोटाइड। और आप अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हो तो 28 के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, 28 के ऊपर है, 28 टू 35 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर भी आप बना सकते हैं। पर ये तभी करिए जब आपको बहुत ज्यादा हेट्रोजीनिसिटी एक्सपेक्टेड है और स्टडी कर रहे हो। आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल है, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास में दो इकोलाई की स्ट्रेन्स है। ठीक है, अब दोनों इकोलाई है, तो इकोलाई इकोलाई है तो दोनों का सीक्वेंस लेंथ सेम ही होगा, है ना? अगर कोई प्राइमर से मैं उसको टारगेट करता हूं उसके जीन को, तो पर उसके सीक्वेंस वेरिएशन हो सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेन्स है। तो सीक्वेंस वेरिएशन के बेसिस पे एक को मैं पॉजिटिव दिखा सकता हूँ कि हाँ ये अवेलेबल है, और एक को दिखा सकता हूँ कि अवेलेबल नहीं है। तो जिस स्ट्रेन के लिए मैं स्पेसिफिक हूँ उसके लिए अगर मैंने प्राइमर बनाया है तो वो उसी को जाके बाइंड करेगा। दूसरा स्ट्रेन वहां पे होगा भी ना तो भी वो वहां पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। यानी हम सिर्फ हमारे प्राइमर से उसी को डिटेक्ट कर पाएंगे जो हमारे स्ट्रेन का स्पेसिफिसिटी है। तब आप ये 28 से 35 लेके जा सकते हैं, हाईली स्पेसिफिक हो। ये आपको समझ में आ गया? देन टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पीसीआर प्राइमर। किसी भी पीसीआर प्राइमर के जो एंड सीक्वेंस होते हैं 3 प्राइम एंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही उसको स्पेसिफिसिटी लाता है, खासकर खासकर उसके जो एंड के 4 टू 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है 3 प्राइम एंड, बताएंगे कोई मुझे? 3 प्राइम एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 3 प्राइम एंड से ही तो पीसीआर एम्पलीफिकेशन शुरू होता है ना? अगर वो वहां पे बाइंड नहीं रहा आपके टेम्पलेट के साथ में, तो उसको टेम्पलेट ही नहीं मिलेगा। टेम्पलेट नहीं मिलेगा तो वो पीसीआर पॉजिटिव नहीं दे पाएगा। इसलिए 3 प्राइम एंड का जो टर्मिनल रीजन होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक रहना चाहिए। फिर जीसी कंटेंट और मेल्टिंग टेम्परेचर, जीसी एंड मेल्टिंग टेम्परेचर ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई मुझे बताएगा एटी में कितने बॉन्ड्स होते हैं और जीसी में कितने बॉन्ड होते हैं? यस, समझे आपको? इसलिए ये क्या बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा जीसी बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर देना पड़ेगा। मेल्टिंग टेम्परेचर समझता है ना? डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करना पड़ता है पीसीआर रिएक्शन में। वो डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में तभी कन्वर्ट हो पाएगा ना जब उसको एक टेम्परेचर देंगे। तो वो डबल स्टैंड जब एक दूसरे से बाइंड है और उसमें अगर 80 कंटेंट ज्यादा है और जीसी कंटेंट कम है,
तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम लगेगा, उसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा, क्योंकि 80 में 2 डबल बॉन्ड है ना, और GC में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यानी ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर लगेगा। तो जितना ज़्यादा GC कंटेंट बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा आपका मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। तो अगर आपके DNA में 50% GC कंटेंट है तो मेल्टिंग टेम्परेचर जनरली 56 to 62 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। समझा आपको? देन PCR प्रोडक्ट लेंथ एंड प्लेसमेंट विद इन द टारगेट सीक्वेंस। कितनी PCR की लेंथ है मैंने आपको अभी यहां समझाया कि अगर आपको ये ऐसा टफ PCR करना है तो आप छोटे छोटे बेस पेयर का एम्प्लीकॉन लोगे, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक PCR है। कौन सा PCR है? डायग्नोस्टिक। यहाँ पे आपको उसका सीक्वेंसिंग नहीं करना है, आपको उसका सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ प्रेजेंस एंड अब्सेंस दिखाना है, यानी मार्कर पीसीआर है ना, क्योंकि आपको सिर्फ ये दिखाना है कि उस पेशेंट के बोन मैरो के अंदर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक पीसीआर। तो ऐसे वक्त में आप छोटा पीसीआर करेंगे, यानी एम्प्लीकॉन साइज सिर्फ 250 बेस पेयर का रहेगा। समझे आप? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है all of the computer program provides a place for selecting a range of the length of the PCR product in a software through. The length of the PCR product has an impact on the efficiency of amplification. ठीक है? क्या efficiency? Length of the PCR product for a specific application is depend upon in part on the template material. For example, clinical specimen prepared from fixed tissue sample tend to yield a DNA that does not support the amplification of large products. ये अभी वाला एग्जांपल है ना। हमारे पास में अगर छोटा सा सैंपल है तो उसमें से आपको ज्यादा डीएनए नहीं मिलेगा, इसलिए आप स्मॉल पीसीआर ही करेंगे, यानी शॉर्ट। सो फ्रॉम अ प्योर प्लाज्मिड or from the high molecular weight DNA, it is relatively straightforward to obtain a product more than 3 kilobase. Then for a purpose of detecting a DNA sequence, generally PCR products of 100 to 1000 base pairs are produced. ठीक है? अगर आपको PCR प्रोडक्ट मिलना है तो 150 से 1000 बेस पेयर का अच्छे से PCR प्रोडक्ट होता है, और अगर आप डायग्नोस्टिक्स कर रहे हो तो 120 से 300 बेस पेयर का सबसे अच्छा है। देखो यहाँ लिखा है क्लिनिकल ऐसे करने के लिए 120 से 300 बेस पेयर का आपने करना चाहिए। इस तरह से वो सारी चीजें उसने बताई है। तो जनरली 150 से 1000 बेस पेयर का एम्प्लीफिकेशन आप पीसीआर में करते हैं जब डायग्नोस्टिक्स करना है। देन नेस्टेड पीसीआर, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। फिर होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं। तो ये पेपर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। सो जो सॉफ्टवेयर है जो आपको पढ़ना है वो है प्राइमर ब्लास्ट। आप गूगल में जाएंगे और प्राइमर ब्लास्ट लिखेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट ही आती है, प्राइमर ब्लास्ट। यू कैन क्लिक ऑन टू दिस। और ये जस्ट जैसे अब मैंने ब्लास्ट किया था वैसा ही है, पर टोटली अलग है। ठीक है? जैसा आपने वहां सोचा था वैसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, पूरा चीज ही अलग है। ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट अगेन इन अ क्लियर वे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको जिस सीक्वेंस का प्राइमर बनाना है उसका सीक्वेंस आपके पास में यहाँ होना चाहिए। ठीक है? उसका सीक्वेंस आपके पास यहाँ होना चाहिए। तो आप उस सीक्वेंस को पुट करेंगे और उसमें प्राइमर डिजाइन करने की कोशिश करोगे। ठीक है? तो मैं एक सीक्वेंस दे देता हूं अभी इसको, मैंने यहाँ पे एक्सेशन नंबर डाल दिया, आप चाहो तो सीक्वेंस भी पुट कर सकते। ठीक है? फिर यहाँ पे आप रेंज दे सकते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर या रिवर्स प्राइमर की लेंथ, यानी फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ से यहाँ तक ही बनाओ और रिवर्स प्राइमर यहाँ से यहाँ तक ही बनाओ। जैसे मैं बोलता हूँ 1 से 300, इसी के बीच में फॉरवर्ड प्राइमर होना चाहिए और
900 टू 400 रिवर्स होना चाहिए। समझ रहे? तो इस तरह से अगर आप दे रहे हैं तो ये लेंथ हो जाएगी उसकी स्पेसिफिक। और अभी मैं यहाँ पे ऐसा कुछ पुट नहीं कर रहा हूँ, हमारी ऐसी अभी कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं। देन यूज माई ओन फॉरवर्ड प्राइमर एंड यूज माई ओन रिवर्स प्राइमर। अगर आपने आपके कोई पर्टिकुलर प्राइमर ऑलरेडी बना लिए है और आप देखना चाहते हो कि वो प्राइमर्स मेरे इस सीक्वेंस में कहाँ बाइंड होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली वो सीक्वेंसेस डाल दीजिए। पर अभी मेरा ऐसा कोई एम नहीं है, मैं डायरेक्टली प्राइमर बनाना चाहता हूँ। पीसीआर प्रोडक्ट साइज, पीसीआर प्रोडक्ट साइज, पीसीआर प्रोडक्ट यानी क्या, कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड। पीसीआर प्रोडक्ट यानी कौन? एम्प्लीकॉन। मुझे एम्प्लीकॉन कितने का चाहिए, यहां लिखा हुआ है 72,000। इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि अगर ये आपका जीनोम है, ये आपका जीनोम सीक्वेंस है, तो यहां समझ लो आपका फॉरवर्ड अटैच्ड हो गया और यहां समझ लो आपका रिवर्स अटैच्ड हो गया। ये दूसरा स्टैंड रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका समझ लो दूसरा अटैच्ड हो गया। तो उसके बीच में जो लेंथ है, इतनी जो लेंथ है, इसको बोलते हैं एम्प्लीकॉन। यानी कितना एम्प्लीकॉन वो बाइंड करेगा फॉरवर्ड और रिवर्स के बीच में, कितना एम्प्लीकॉन एम्पलीफाई करेगा, तो ये वहां पे बताना है। 72,000 बेस पेयर, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, मैं बोलता हूँ 252,000 बेस पेयर कर दीजिए। नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 600 कर देते हैं। यानी मुझे 250 से 600 न्यूक्लियोटाइड का ही एम्प्लीकॉन दो, ज्यादा नहीं चाहिए। नंबर ऑफ प्राइमर्स पेयर्स टू रिटर्न, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है आपको 10 टाइप के प्राइमर पेयर की सेटिंग दे सकता है, सेट्स दे सकता है। आपको कितने चाहिए? मैं बोलता हूँ टॉप 5 दे दो, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। मेल्टिंग टेम्परेचर 57, 60, 63, मिनिमम इतना, ऑप्टिमम 60 और मैक्सिमम 63। ये मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इसके कारण डीएनए से डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये कितना होना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ 57, 60, 63, ठीक है। इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, पर ये जो नंबर है ये हमेशा इसका डिफरेंस रहना चाहिए। देखो ये 57 टू 60 का 3 का डिफरेंस है, 60 टू 60 3 का डिफरेंस है। हमेशा वैसे ही रहना चाहिए। फिर आ गया एक्सॉन इंट्रॉन सिलेक्शन। ये आपको समझ रहा है अभी? एक्सॉन जंक्शन, प्राइमर मस्ट स्पैन एन एक्सॉन एक्सॉन जंक्शन, ठीक है। प्राइमर मे नॉट स्पैन एन एक्सॉन एक्सॉन जंक्शन। इसका क्या मीनिंग है आपको समझ रहा है? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं यहां लिखता हूं प्राइमर मस्ट स्पैन एन एक्सॉन एक्सॉन जंक्शन, इसका क्या मीनिंग? हाँ, यानी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सी डीएनए पीसीआर भी डिटेक्ट हो पाएगा और जीनोमिक डीएनए भी डिटेक्ट। समझा आपको? हाँ, अब आपको आइडिया क्लियर हो गई। पर अगर मैं यहाँ नो प्रेफरेंस देता हूं तो वैसे ही रहेगा। देन एक्सॉन जंक्शन मैच, ये जो एंड है, आप बोल रहे कि एक्सॉन एक्सॉन के वहां पे बाइंड होना चाहिए, तो जो 5 प्राइम एंड है उसमें कितने मिनिमम न्यूक्लियोटाइड्स ओवरलैप में आने चाहिए उसके साथ में, या कॉम्प्लीमेंट्री में आने चाहिए, ये लिखिए भैया। इंट्रॉन इंक्लूजन, ठीक है, समझ रहे हैं? प्राइमर पेयर मस्ट बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन इंट्रॉन ऑन द करस्पॉन्डिंग जीनोमिक डीएनए। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं जीनोमिक डीएनए लेके ही पीसीआर करने वाला हूं, समझे? इसका मतलब है कि हमेशा मुझे एक इंट्रॉन मिल के जाएगा। तो फिर इंट्रॉन की लेंथ क्या होनी चाहिए? क्योंकि इंट्रॉन की लेंथ अलग अलग होती है, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा इंट्रॉन ढूंढो जिसकी लेंथ 2000 बेस पेयर ही होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। पर अभी ऐसी मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं हटा देता हूँ। फिर आता है प्राइमर स्पेसिफिसिटी चेक।
प्राइमर स्पेसिफिसिटी चेक यानी क्या? आ, एक सिचुएशन लेते हैं। मैं एक होमोसैपियन के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। कौन है? होमोसैपियन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। होमोसैपियन, ये होस्ट है। कौन है? होस्ट। और इसका जो कॉजिटिव एजेंट है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस, यानी जो उसको डिसीज कर सकता है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। मैं पीसीआर जो कर रहा हूं वो बैसिलस एंथ्रेसिस के जीन को डिटेक्ट करने का कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक प्राइमर डिजाइन किया, ठीक है। एक प्राइमर डिजाइन किया जो बैसिलस एंथ्रेसिस के जीन को डिटेक्ट करता है। पर कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है ना कि जो प्राइमर आपने बनाया वो ह्यूमन के जीन को जाके अटैच्ड हो जाए। हो सकता है ना? क्यों? आप बोलोगे सर क्यों होगा? क्योंकि आप जब सैंपल कलेक्ट करोगे ना, आप जब सैंपल कलेक्ट करोगे पेशेंट से, तो पेशेंट आपको स्पूटम देगा, है ना, या फिर ब्लड देगा, या फिर बायोलॉजिकल फ्लूइड देगा। इसमें सब में कहीं ना कहीं ह्यूमन डीएनए भी तो है ना, प्लस बैसिलस एंथ्रेसिस का भी है। तो जब आप पीसीआर लगाएंगे तो पीसीआर में कौन कौन मिलेगा? ह्यूमन डीएनए प्लस बैसिलस एंथ्रेसिस का डीएनए। तो अगर आपका प्राइमर ह्यूमन जीन के साथ स्पेसिफिक हो गया तो क्या हो जाएगा? कौन सा पीसीआर मिलेगा आपको? कौन सा पीसीआर मिलेगा? फॉल्स पॉजिटिव पीसीआर मिलेगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसकी स्पेसिफिसिटी चेक नहीं की थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ चीज, प्राइमर पेयर स्पेसिफिसिटी चेकिंग। आपका जो ये सीक्वेंस है ये जो सीक्वेंस दिया वो शायद आपका बैसिलस एंथ्रेसिस का हो, पर आप यहाँ पे होमोसैपियन का मैच करा सकते हो कि ये उसके साथ मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके साथ मैच नहीं होना चाहिए, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिसिटी है। फिर वो पूछता है कौन सा डेटाबेस चेक करना है। अगर आप सीडीएनए पीसीआर करेंगे तो ये लेना पड़ेगा, अगर आप जीनोम लेने वाले हो तो ये लेना पड़ेगा। समझ रहे? इस तरह से स्पेसिफिसिटी का अगेन यहाँ पे पैरामीटर है। एंड देन show result in new window and get primers. तो देखिए अब आपके पास में प्राइमर्स आ गए, पेयर्स। ये पीसीआर के प्राइमर पेयर्स हैं। आपको आपने 5 मांगे तो उन्होंने 5 दे दिए टॉप वन। सो दिस इज योर फॉरवर्ड प्राइमर, दिस इज योर रिवर्स प्राइमर। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये कहाँ बाइंड हो रहा है ये बताएगा आपको। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है
स्टार्ट पोजीशन 51th न्यूक्लियोटाइड से लेके 70th न्यूक्लियोटाइड तक बाइंड करेगा। फिर रिवर्स कहां से बाइंड करेगा, 322 न्यूक्लियोटाइड से लेके 341 न्यूक्लियोटाइड तक बाइंड करेगा। अल्टीमेटली जो पीसीआर प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो 291 न्यूक्लियोटाइड्स का मिलेगा। यानी डेफिनेटली जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे आपको 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड का बैंड मिलना चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कहीं और बैंड मिल रहा है तो समझ जाना कि पीसीआर रॉन्ग हो गया है। समझ गए आपको, ये इंपॉर्टेंट है पीसीआर। समझ रहा है सबको, किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? इसमें जीसी कंटेंट आप देख लीजिए 55% है, मोर देन 50% है। मेल्टिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 59 और 60 डिग्री। तो 59 टू 60 डिग्री सेल्सियस आप मेल्टिंग टेम्परेचर रखेंगे पीसीआर के अंदर। और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री 6 है, ये आई थिंक 18 बेस पेयर का होगा और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री 6 है उसके अंदर, सो इट्स ओके। एंड सेल्फ 3 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री बहुत कम है, 1 एंड 2, यानी डेफिनेटली अच्छा प्राइमर है और हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हम्म, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अब अरे सर ये तो आपने वर्चुअल बता दिया, पीसीआर में तो रियल केमिकल डालना पड़ेगा ना। बराबर है, क्वेश्चन आपका ये है ना कि सर ये तो प्राइमर आपको डालना पड़ेगा ना पीसीआर में, कैसे करेंगे? ऐसे ही पूछ रहे ना आप, केमिकली कैसे डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल सही सोच ये अगर किसी को क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं, किसी को पता है मैडम के क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका मतलब है कि मैडम का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, मैडम का क्वेश्चन ये है कि आपने तो ये थेरोटिकली बता दिया कि दिस इज द सीक्वेंस फॉरवर्ड और रिवर्स, यही आप पीसीआर में इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम तो पीसीआर रिएक्शन ओरिजिनली करते हैं, थेरोटिकली थोड़ी ना करते हैं। तो जब प्रैक्टिकली हम करने की कोशिश करेंगे तो हमको तो ये केमिकली लगेगा, तो ये कहाँ से मिलेगा, कौन आपको देगा? ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, अ, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो ये प्राइमर्स बना के देती है आपको। मैडम आपको समझ गया, आप ऑन रखिए आपका माइक। हाँ हाँ, आप ये जो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस सिर्फ उनको मेल कर देना पड़ता है। उनको मेल कर दीजिए कि मुझे ये सीक्वेंस का प्राइमर चाहिए। ठीक है, वो आपको बना के भेज के छोटे छोटे वायल्स में बना के भेज देते हैं, साथ में बफर। हम्म, हाँ, सिंथेटिक सिंथेटिकली बनाते हैं, इसको बोलते हैं जीन सिंथेसिस। तो ये छोटा छोटा न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं वो लोग, 5000 न्यूक्लियोटाइड तक जीन बना सकते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं, ये जो से सीक्वेंस आपने दिया वैसा वो सिंथेसाइजर में डालते जाते हैं, पहले सी डालेंगे, फिर सी डालेंगे, फिर बाइंड होते जाता है, धीरे 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 वो पूरा बनते जाएगा। और आपको वो पर्टिकुलर ओडी का कंसंट्रेशन देते हैं, ओडी में यानी ऑप्टिकल डेंसिटी। आप, हाँ, जैसे आप बोलोगे कि मुझे 1 ओडी का प्राइमर दीजिए, तो बोलेंगे कि 1 ओडी में इतने पीसीआर रिएक्शन होंगे, 2 ओडी का दीजिए, 3 ओडी का दीजिए, जितने ओडीज का मांगेंगे उतने ओडीज का वो पीसीआर बना के देते हैं, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। और फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसका डाइल्यूशन करना पड़ता है बफर में डाल के, और बफर में डालने के बाद में उसका स्पेक्ट्रा लेना पड़ता है कि कितना ओडी का मेरा अभी बना है, जितना ओडी का चाहिए उतना ओडी का आप उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं, ऐसा है वो। हम्म,
सारे सारे अभी कोविड में क्या कर रहे हैं, आरटीपीसीआर ही कर रहे हैं ना, सबके पास है, जितने भी पीसीआर वाले हैं सबके पास में उनके प्राइमर सीक्वेंसेस होते हैं, प्राइमर की बॉटल्स होती है छोटी छोटी, जितने भी कोविड के टेस्टिंग्स हुए इसके स्पेसिफिक प्राइमर्स है, वो डालते हैं और उससे पीसीआर रिएक्शन करते हैं, यानी ये डेफिनेटली प्रैक्टिकली अप्रोच है। जितने भी पीसीआर करते हैं उनको सबको अपने अपने प्राइमर्स बनाने पड़ते हैं एज पर देयर नीड। हाँ हाँ यस, उसमें हमने क्या किया था, मैं भूल गया, उसमें जीन टारगेट किया था ना हमने। हाँ यस, उसमें भी सेम ऐसे अप्रोच करेंगे। सबको समझ में आ गया ये करना कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे सर इनमें से कौन सा लेना है, आप चाहो तो पांचों के पांचों सिंथेसिस में डाल दीजिए, ठीक है। ये इतना सेट अगर आपको प्राइमर बना के आपके लैब तक पहुंचना है यहाँ तक, तो इसका कम से कम 2,000 रुपये खर्चा आएगा ये एक सेट का, तो ऐसे समझ लो 10,000 रुपये का ये सेट आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें और एक चीज होती है, एचपीएलसी प्यूरिफाइड और नॉन एचपीएलसी प्यूरिफाइड, ठीक है। तो अगर आप एचपीएलसी प्यूरिफाइड लेते हैं तो हाई क्वालिटी प्राइमर्स होते हैं, अगर आप नॉन एचपीएलसी प्यूरिफाइड लेते हैं तो लो क्वालिटी होते हैं। हमारी कंपनी भी करती है, ठीक है, विथ कोलैबोरेशन। आपको अगर कभी भी सीक्वेंस प्राइमर सीक्वेंस चाहिए रहेगा, यू कैन ऑर्डर विद अस, हम उसको दे देंगे आपको सप्लाई करके। आपको अगर प्राइमर डिजाइनिंग भी कभी तकलीफ हुई तो यू कैन आस्क अस, हम उसको करके दे देंगे, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो, इसको प्रैक्टिस करो। और जितना भी पेपर का मैंने आपको बताया ये वाला, ये पेपर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये पेपर में से आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा और नीचे बचा हुआ है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी हम कवर करेंगे, ज्यादा नहीं है थोड़ा सा ही है, पर ये हम कल कवर करेंगे छोटा सा। यहाँ तक आई थिंक आज ओके है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके देन विल स्टॉप हियर देन। इसका प्रैक्टिस जरूर करिए, पर कोई भी सीक्वेंस डाल के आप चेक कर सकते हैं, इसमें कभी भी प्रोटीन सीक्वेंस मत डालना। आप इसमें जीन सीक्वेंस डाल सकते हैं, सीडीएनए सीक्वेंस डाल सकते हैं, जीनोम का फ्रेगमेंट भी डाल सकते हैं, पूरा पूरा जीनोम मत डालिएगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे और एक चीज है जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सीक्वेंस पीसीआर, वो हम बाद में पढ़ेंगे कल। आज आई थिंक इतना काफी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? हाँ, नहीं इसके अलावा कोई मेथड नहीं, यही मेथड से प्राइमर डिजाइन करते हैं स्पेसिफिक। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, पर मैन्युअली बहुत टफ है। हाँ यही स्टेप्स है जिसके थ्रू बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस है? चलो, विल स्टॉप हियर देन।